ये सब। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक ना। तो ये तो अपना बेसिक जो एफएम में था वही है। काउंटेड पे बैक का तूने एक तो ये किया क्या? मैं एक बार जरा फटक से ये कर लूँ क्या इलस्ट्रेशन? हाँ कर लेंगे। मिनट, एफएम डिस्काउंटेड पे बैक में 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें कुछ नहीं, एक तो -2000 है, फिर 8000, 12000, 4000, 2000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 8% पे बैठा हुआ है, मतलब 1.926। और ये एन्युटी देख रहा हूँ मैं, ये 0.926, 0.857, फिर 0.794, लास्ट में 0.735। तो फिर इसको अपन करेंगे मल्टीप्लाई। तो अभी मेन जिसके लिए मैंने इसको दे लिया था वो ये था कि इसको इसको ऐड करूंगा इतना मिलेगा, फिर इसको और इसको ऐड करूंगा तो 2000। अभी 2308 है यहाँ पे मेरे पास। मेरे पास 3176 है। तो मेरे पास 2 साल तो कंफर्म हो गए, बराबर है। 0, 1, 2, तो दो तो है, तो आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग। अभी 2 पॉइंट हाउ मच, तो दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 365। नहीं, इंटू पॉइंट, इंटू 365, इंटू 12 किया रहेगा ना उन्होंने डायरेक्टली मंथ्स में करने के लिए एक्चुअली। 2.9 आया क्या? 2.73 ईयर्स। 0.73 है। 0.73 ईयर्स। They can multiply with anything such that इसका एक फॉर्मूला है ना। अच्छा अच्छा, डिवाइड, अच्छा इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? ओके। तो 2.73 ही डायरेक्टली इन्होंने आंसर में ले लिया। ओके ओके। ठीक है। ईयर्स भी ठीक है। रखना है। ओके। फिर नया कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन। मैं कॉल ड्यूरेशन। Introduction to the concept of duration. Duration measures the average time to recover the present value of the project of cash flows are discounted at the cost of capital. Duration captures both the time value of money and the whole of the cash flows of the project. Okay, across the project. It is also a measure which can be used across projects to indicate when approximately half of the project value will be captured. Projects with higher durations carry more risk than projects with lower duration. So actually it's the same concept basically, है ना? थोड़ा बहुत तो concept same ही है, The only लेकिन difference is that this considers the time value of money or time value of this, and whereas discounting this doesn't. So when we calculate that present value, तो नहीं, उसको अपन फिर बाद में मल्टीप्लाई भी करते हैं with years। this includes the whole cash flows of the projects. वही तो टाइम वहां वैल्यू ऑफ पे, मनी। हाँ, नहीं होल कैश फ्लोज मतलब, आई थिंक उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने वो बोला था ना कि डिस्काउंटेड पेबैक मतलब सिर्फ ब्रेक इवन तक देखते हैं, यहाँ पे होल कैश हाँ। फ्लो देखते हैं। होल कैश फ्लो भी होल, देखते हैं, ओके। हाँ। दोनों रहता है मतलब। Calculation of duration. There are several different ways of calculating duration, the most common of which is Macaulay duration, illustrated below. More details on duration. As mentioned above, duration measures the average time to recover the present value of the project of discounted at the cost of capital. However, if cash flows are discounted at the project's IRR, it can be used to measure the time to recover the initial investment, as well as being used in project appraisal. During project appraisal, duration is commonly used to assess the likely
volatility, that is risk associated with the corporate bonds. An example of duration in the context of bonds is shown in chapter 6. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक एंड ड्यूरेशन. Payback, discounted payback. सबसे पहले payback, discounted payback and duration are the three techniques that measure the return to liquidity offered by a capital project. In theory, a firm that has ready access to the capital markets should not be concerned about the time taken to recapture the investment in a project. In theory, a firm that has ready access to the capital market should not be concerned about time taken to recapture the investment in the project. Okay. However, in practice, managers prefer projects to appear to be successful as quick as possible. देख, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जिन फर्म्स के पास कैपिटल मार्केट्स का रेडी एक्सेस रहता है, उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि उनको उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा. क्योंकि तुम्हारे पास अगर कैपिटल मार्केट का एक्सेस है तो शायद तुम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, है ना, ऐसा शायद ये बोलना चाहते हैं. However, in practice, managers prefer projects to appear to be successful as quickly as possible. लेकिन जितना जल्दी होगा उतना बेटर है, ऐसा. फिर आते हैं पे. ये लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते हैं क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लेते हैं ना, लेते हैं क्या? लेना तो चाहिए. एक बार अपन सम कर लेंगे ना तो अब अपने को एक बार पता चल जाएगा. Payback period. Payback is a technique, as a technique fails to take into account time value of money and any cash flows beyond the project date. अच्छा, ये तो बेसिक ही है, पे बैक एंड वो डिस्काउंटेड पे बैक का ये ड्यूरेशन एक बार पढ़ लेते हैं. ड्यूरेशन मेजर्स ईदर द एवरेज टाइम टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट if discounted at the project's internal rate of return of a project, or to recover the present value of the project if discounted at the cost of capital. Duration captures both the time value of money and the whole of the cash flows of a project. It is also a measure which can be used across projects to indicate when most of the project value will be captured. Its disadvantages is that it is more difficult to conceptualize than payback and may not be employed for that reason. Is that more difficult to capitalize than payback? Conceptualize than payback and may not be employed for that reason. मतलब बेसिकली शायद अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट, और या conceptually it is not. Agreed. Conceptually it is probably not supporting इतना जितना payback period is supporting by कि 2 साल में आज जितना जितना जल्दी वो पॉजिटिव होता है, we take it as soon as पॉजिटिव होता है, but in this case उसमें ऐसा कुछ अपन कंसिडर नहीं कर रहे, तो मे बी वो बराबर ये कहना चाह रहा है. बराबर. इलस्ट्रेशन 3 अभी ये कर लेते हैं, ठीक है. तू तू जरा पढ़ेगी क्या, मैं आता हूँ. Illustration 3. हाँ. A project with the following cash flow is under consideration. हम लोग को दिया हुआ है value for the same T0123 4. 20,000 is the initial investment and cash flow 8,000, 12,000, 4,000, 2,000. Cost of capital is 8%. Calculate करने के लिए हम लोगों को बोला है कि first calculating the discounted cash flow for each future year and then weighted each discounted cash flow according to its time of receipt as follow. सबसे पहले कैश फ्लो का डालेंगे, इसमें we are not taking the initial value, फिर उसको डिस्काउंट फैक्टर यूज करके 8% का प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे. देन दैट विल मल्टीप्लाई दैट प्रेजेंट वैल्यू विद द पीरियड, ईच पीरियड. फिर प्रेजेंट वैल्यू of cash flow का total and the present value of into years का total will divide each other and will get the सर ने ना period. इसका बोला था कि सर ने बोला था कि इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ सर ने हमसे हाँ वो लिखवा के लिया था. समेशन. सो टोटल मतलब समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इनटू ईयर. तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो
into year. So this total is basically the summation. और यहाँ पे present value cash flow into year. नहीं, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ही नहीं, सिर्फ, मैं क्यों 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 किया मैंने ऐसा? sum of टोटल present value of टोटल cash flow. हाँ टोटल टोटल This is किसका फॉर्मूला इसका नाम क्या है? डिवाइड वैक्यू करना है. फॉर्मूला एप्लीकेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्यूरेशन. तो अभी अपन इस केस में वो अप्लाई करके देखते हैं जरा. जीरो वन टू थ्री फोर. पर इसमें भी डोंट टेक दिस ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो चीज मैं बोल रही हूँ. टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लिया नहीं है ना क्यों इन बोल रहे लोगों ने, नहीं है? मतलब. अच्छा. ओके तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ये लोग सिर्फ कैश फ्लो को ही कंसिडर कर रहे हैं जो अंदर आ रहा है बेसिकली, नॉट कैश आउटफ्लो. या ओके मेक सेंस. तो लिख देते हैं एक बार. कैश इनफ्लो कैश फ्लो 8,000 10,000 12,000 4,000 2,000. 8% है तो मैंने लास्ट टाइम जो लिखा था डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो. कैश फ्लो इनटू ईयर. समेशन ऑफ दिस, मतलब कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है ईयर, नंबर ऑफ ईयर के साथ. फिर अपन इन दोनों को करेंगे डिवाइड और मिल जाएगा 1.94. तो वही आंसर है, हाँ 1.94. दिस इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इनटू ईयर. ये देता है. दिस इज नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो. द आंसर. ठीक है. या टीवायू 5 सेम फ्लो में करते हैं. हम्म, T4 T5 26 69 44 29.
683, 0.621, 0.564. तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, खाली मल्टीप्लाई किया है ना। तो अभी इसको ही लेके पूरे जगह पे चेप देते हैं, ठीक है। और समेशन में I34 की जगह पे K33 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी K32, ठीक है ना। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर, इसी चीज को यहाँ तक चेप देता हूँ, तो आ गया 3.18 आता है मेरे को। 0.18 इज व्हाट आई एम गेटिंग। TYU5 के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। 3.2 आया है, हाँ ठीक है। वो एक्चुअली बहुत सारी चीजें करनी थी इसके में क्या। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड मैकॉलेज ड्यूरेशन। ओ, अच्छा। प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पेबैक भी करना था, फिर आई डिडंट डू दैट। ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक कर लेंगे। -30.7 है ना, फिर ये ड्यूरेशन हो गया ना। फिर आता है डिस्काउंटेड पेबैक। -127। तो अभी पे बैक अकरिंग एट व्हाट डेट? तो पे बैक जो अकर हो रहा है वो वैसे हो तो इस डेट पे रहा है, सेकेंड ईयर पे, तो 2 तो है ही। और आगे चल के कितना बचता है वो चेक करना है ना। 2.88 आता है फिर मेरे को। 2.88 है क्या आंसर पे बैक पीरियड का? 2.9, हाँ 2.9 ईयर्स, मतलब 2.88 बराबर। तो 2.9 ईयर्स, एंड यहाँ पे 3.1 यही थी, उन्होंने यहाँ पे दिया है 3.2 ईयर्स बराबर। मेक सेंस, मेक सेंस। मेरे को ये क्लास में मिला नहीं था, क्योंकि उस दिन शायद मैं एक्सेल लेके नहीं आया था, ये कंप्यूटर लेके नहीं आया था, लैपटॉप। ठीक है, तुम्हारा हो जाए तो बता देना। ये 2.88 है ना? हाँ 2.88 है। हम्म, 88 है। चलो आ जाए नेक्स्ट वाले पे आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। Modified duration. As well as Macaulay duration, there is another commonly used measure of duration known as modified duration. Comparison of Macaulay duration and modified duration. Macaulay duration is the name given to the weighted average time until the cash flows are received and is measured in years. Modified duration is the name given to the price sensitivity and is the percentage change in the price for a unit change in yield. Macaulay duration and modified duration differ slightly, and there is a simple relationship between two, assuming the cash flows are discounted annually. Namely, modified duration is equal to O. एक मिनट ना, ये वाला चीज शायद मैंने देखा नहीं था, नोटिस नहीं किया था। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैकॉले ड्यूरेशन इनटू 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मैंने तो, इंटू डिवाइड है। क्या है वो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ माय बैड माय बैड। मैं वही सोचू, इनटू कहीं पे था ही नहीं, ये डिवाइड है, राइट राइट राइट, ये था।
मैकॉले ड्यूरेशन को अपने को डिवाइड करना रहता है 1 + कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। Therefore, in the above illustration, when the project cash flow were discounted at 8% and the Macaulay duration was 1.94 years, the modified duration is 1.94 divided by 1.08, तो वो अपने को रहता है 1.8 years, ठीक है। So that's the only ये, तो modified duration is just Macaulay duration divided by cost of capital, ठीक है। ये शायद फॉर्मूलाज को मेरे को लिखना पड़ेगा, वो बाद में लिख देते हैं। ये पड़ेगी यहाँ से पढ़ना। Investment, appraisal, and capital rationing. Capital rationing was first introduced in financial management. A brief recap follows. Capital rationing, the basics. Shareholders' wealth is maximized if a company undertakes all possible positive NPV positive projects. Capital rationing is where there are insufficient funds to do so. The storage of funds may be for a single period only, dealt with as in limiting factor analysis by calculating profitability indexes. PI. PI is equal to NPV upon PV of capital invested. More than one period extending over a number of years or even indefinitely. यस, ठीक है। TYU 6 कर लेते हैं। तो कैपिटल रेशनिंग बेसिकली कि हमारे पास कम पैसे हैं और हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि इंडिपेंडेंट एंड मतलब वो डिविजिबल, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इनमें से एक में ही इन्वेस्ट करना है। इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, या मतलब वो 20% 30% भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 100% ही करना है, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल मतलब 30% 40% इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा। आई थिंक फर्स्ट वाला जो है ना वो रैंक बेसिस पे होता है। सेकंड वाला जो होता है उसमें अपन क्लब कर सकते हैं। एंड थर्ड वाला जो होता है उसमें क्लब नहीं कर सकते, ऐसा है ना? नहीं, रैंकिंग ना इनमें और इस मतलब सॉरी एक मिनट ना, रैंकिंग फर्स्ट और सेकंड वाले में भी होगा, आई आई फील रे। सेकंड वाले में तो दोनों मतलब में, क्लब कर सकते हैं ना। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले क्लब में नहीं भी कर क्लब सकते। कर सकते हैं शायद। फर्स्ट वाले में भी क्लब कर सकते हैं लेकिन वो डिविजिबल नहीं है, मतलब आई थिंक उनको पॉइंट में नहीं कर सकते, मतलब जैसे इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 30% और 40% ऑल्सो इन इट, अच्छा, लाइक फुल इफ, अमाउंट होना चाहिए। हाँ फुल अमाउंट होना चाहिए बेसिकली, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। एक ये सम कर लेते हैं सो दैट अपना डाउट क्लियर हो जाए। TYU 6। ABCD NPV 60 40 35 20 इन्वेस्टमेंट at T0 9 12 6 and 4। फिर हमें निकालना है PI, यानी कि प्राइस इंडेक्स। एनपीवी डिवाइड बाय ये करते थे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अभी इनके बेसिस पे अपने को रैंकिंग करना है, राइट। तो अभी रैंकिंग करना है 1 2 3 एंड 4, ऐसी रैंकिंग होगी, राइट। तो अभी अगर इस बेसिस पे रैंकिंग होगी तो सबसे पहली चीज जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल। इफ आई एम डूइंग इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल, तो सबसे पहले जो मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा वो होगा ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ 9, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेफ्ट, अपने पास है इन्वेस्टमेंट 12। अमाउंट लेफ्ट। हमारे पास है सिर्फ 12 ही, तो अभी हमारे पास बाकी 3 ही है।
तो अभी हम जितना भी करेंगे हम खाली तीन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग तीन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना है 35 वाले एनपीवी में, क्योंकि अभी सी प्रोजेक्ट है ना। और इन्वेस्टमेंट जो T0 पे रिक्वायर्ड है वो है 6 की। हमारे पास अमाउंट लेफ्ट लेकिन तीन ही है। सो 35 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट हम तीन का कर सकते हैं लेकिन चाहिए 6, तो हम लोग 50% कर सकते हैं। तो वी गेट 60 एंड सो वी गेट एन एनपीवी ऑफ 77, मतलब 77.5। ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल, कि अभी हम लोग इसमें डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो अगर डिवाइड कर ही नहीं सकते तो खाली प्रोजेक्ट सी चला जाएगा, बचेगा एनपीवी 60 का, क्योंकि हमें पहला वाला तो हमारा ए है ही। ये 60 में देखो 17.5 कैसा है, तूने क्या किया? ये देखे देख, मेरे को मेरे पास 3 ही रुपए बाकी है, लेकिन वो मेरे को 6 रुपए इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये डिविजिबल है, तो मैं इसमें 50% इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास 50%, मतलब 50% मतलब तीन है और सिक्स है, तो 3/6, सो हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग? 6/3। 50%। 3/6। 3 डिवाइड बाय, ओके। 3/6 50% होता है ना, 0.5 मतलब। तो मुझे एनपीवी भी फिफ्थ मतलब मेरा 50% ही हक है, ऐसा। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बहुत फालतू समता, बट क्योंकि एक सेकेंड म्यूचुअली ना, एक्सक्लूसिव। हाँ। इन्वेस्टमेंट लेफ्ट इज 3, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट इन सी है वो भी 3 दिखाएंगे, तूने 6 दिखाया है। कहाँ 3 पे? होएगा ना? नहीं, इन्वेस्टमेंट ये मेरा, चल ठीक है, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एट T0। ओके ओके। मैंने इसको ऐसा समझा कि मेरे को इन्वेस्ट करना है इसमें 6, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेफ्ट 3 का ही है, ऐसा मैंने दिखाया है। अब ये बराबर था क्या मेरा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आंसर सेम ही होगा ना? फालतू समझा ये, क्योंकि इसमें फैक्ट सेम थे। हाँ। ओ, अरे राइट राइट राइट। सो बेसिकली फर्स्ट अरे हमने ना आंसर बराबर लिखा है, लेकिन ना हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी लिखने थे। माय बैड। थर्ड वाला सेकंड वाले में हमें ना ऑप्शंस भी लिखने हैं, लाइक मतलब फर्स्ट ये मैं ऑप्शन जो है। हाँ, ये अभी सेकंड ऑप्शन ये भी तो है कि हम लोग इंडिविजिबल तो है। दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये भी है। सेकंड ऑप्शन में रैंकिंग का जरूरत नहीं है, सो इन सेकंड ऑप्शन वी विल गो फॉर 2 and 3, लाइक सी एंड डी। तो एनपीवी हमें सी में मिलेगा 35, इसमें मिलेगा 20 का। आंसर इज 55। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 6 और 4, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेफ्ट 2, यहाँ पे ऐसा। लेकिन फिर भी एनपीवी ये वाला ही जीत रहा है, एक सेकेंड, ऐसा। ए मेरा हो चुका है। फिर we need, it can be, we have 12, so we can do CD, C plus CD, हाँ, सी डी। which is 6 plus 4. या फिर ओनली बी। Investment is 6 plus 4. इफ वी गो ओनली बी, तो हमको एनपीवी मिलेगा 40 का। B. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर ओनली ए। फालतू में नहीं था। You want to prefer this. Because it's can be the highest essay, we are going for A, right? राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। ठीक है। मैंने लास्ट वाला नहीं किया है। हाँ ठीक है, कर ले कर ले। Mutually exclusive.
पाया भी इसमें क्या देखना रहता है, सी क्रेडिट एट द टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड। कोई भी एक ही हमें करना है इन्वेस्ट। हम लोग इसमें कैसा था, सी और डी भी कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें एक ही करना है सिर्फ, तो बेस्ट ऑप्शन इज ए ओनली।